जो मैं है वो मैं कौन है? ये शरीर। अगर मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ और मैं कहीं और हूँ, तो वो जो वहाँ है वो कौन है? और जो वहाँ बैठा है यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? ये अलग है दोनों। या और ये विरोधाभास हमेशा रहता है। तुम्हारा पेट भरा हुआ मैं खाना परोस दूं, तुम खाना नहीं खाओगे, तुमको स्वाद नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो योर माइंड हैज टू बी रेडी फॉर इट। रजनीश की एक बहुत पावरफुल सेइंग है। मेरे को लोग बोलते हैं सर आप बहुत अच्छे मेंटर और बहुत अच्छी सर्जी सिखाते हो। सो ऑलवेज टेल देम व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया था नीचे और उसने बोला था कि पार्थ मुझे रास्ता दिखाओ, तो ही बोले थे भगवान कृष्ण। उससे पहले तो नहीं बोल रहे थे ना। So, sir, you like reading, sir. Yeah, a lot. Sir, what's the best book you can recommend to my audience? You see, the book I might recommend, people may not like it because it's become a very cult movie for that. So, the first book probably which influenced me was when I read Bourne Identity by Robert Ludlum. It's about an assassin who's lost his memory. But the best part was he was good at everything. And he could hear the sound of a gun and tell what gun is firing, how many shots are left in the gun. He could understand 20 languages. He could hear the sound of an engine and calculate the horsepower of the car. Now, that man was a genius, but he was an assassin. So I was very impressed with that character. So as a youngster, I started reading fiction when I was 9-10 years old. My father introduced me to reading books. Spirituality, life philosophy, life skills, fiction, everything was open. I have a huge library at my home. So once I read this book at 12 years of age, which is very impressionable, I was impressed by this assassin, not for the bad he does, but the qualities he had. The perseverance. He could sit, he was an ace shooter, sniper. He could sit in a place without moving for 10 hours, sweating, not going to bathroom, but he would wait for his target. So I said, this is a beautiful thing. And the second book, which actually changed my perception of living life, is I read a lot of gurus, Sadhguru, I read Rumi. Osho is one of my favorites, Rajneesh. Right. And I've been reading Osho since I was 12 years old. So there is a book by Osho. One is called Main Mrityu Sikhata Hoon. It's the power of living when you're ready to die. Knowing that you will die and then living. And the second book is Krishna, the Man and His Philosophy. And once I read that book, I inferred that Lord Ram was a human being trying to be like a god. Perfect. Absolutely perfect. It made his life very uncomfortable. And Krishna was a god who was trying to live like a human being. Full of fallacies, full of mistakes, full of naughtiness. And he had a good life. So from there I realized if you want to live your life full, accept your mistakes, accept your shortfalls, be the way you were. So my father used to tell me, which I tell everybody, a rose in a field of tulips doesn't become a tulip. Even if it is surrounded by 50,000 tulips. A rose remains a rose. Don't let your environment change your basic core because you are special. God made you like that. Capitalize on your core. Encash it. Work on it. Utilize it and blossom. What the society normally does is the society is run by mediocrity. It might sound pompous. It might sound megalomaniac, but that's what society is. Society will not tolerate exceptional people. It wants to pull them down to the law of average. That's the way a society works. So if you see every successful person, there are 50,000 people wanting to criticize him and pull him down. But in spite of that, he does what he does because that's who he is.
So if all of us stick to our individuality, who we are, love the person who brushes my teeth with me in the mirror in the morning. If I can love the person who brushes my teeth with me in the mirror, I'm a happy man. Otherwise, most of us are uncomfortable with a part of ourselves because the society tells us that this is bad. Don't do this. So we start doubting ourselves. The day you start loving yourself, you will see only love flowing. You will see energy. You will see positivity. Because what you will love in me is what you love in yourself. Right. And what you will hate in me is what you hate in yourself. But if you stop hating anything in yourself, you will love everybody. Sir, I have read somewhere that whatever thoughts came into your mind now, don't attach yourself to it. Don't give any judgment. Let it come. Wait, patient, meditate, let it go. It is not your identity. This is concept called आप करता नहीं दृष्टा बन जाओ, स्पेक्टेटर बन जाओ, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो. जो मैं है वो मैं कौन है? ये शरीर. अगर मैं अभी आपके साथ बैठा हूं और मैं कहीं और हूं, तो वो जो वहां है वो कौन है? और जो वहां बैठा है यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? ये अलग है दोनों. और ये विरोधाभास हमेशा रहता है. आप कई बार वो चीज कर रहे होते हो जहां आपका मन नहीं होता. आप खाना खा रहे होते हो, आपका मन परेशान होता है, पर आपको स्वाद नहीं लगता खाना. राइट सर. वही खाना है जो आपने कल खाया था और आप खुश थे, आपको बहुत स्वाद लगा था. Because you were in तो that जिस present. व्यक्ति को खाने को जिस व्यक्ति को खाना स्वाद नहीं लग रहा, तो वो कौन है? कौन है? हाँ. वो कौन है? तो आपकी मनोस्थिति डिसाइड करती है कि एंड रिजल्ट क्या होगा आपका. जब भी मैं कॉम्प्लिकेट सर्जरी करने बैठता हूं तो मेरे एसोसिएट्स और जूनियर्स बोलते हैं कि सर ये कैसे. तो आई सेड नो, आई जस्ट करूंगा यार, वो हो जाएगा. और जैसे जैसे स्टेप होता रहता है, रास्ता खुलता रहता है. प्रॉब्लम तब होती है जब अंदर और हाथ की द्वंद हो जाती है, लड़ाई हो जाती है. होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, गड़बड़. तो मेरा डिक्टम है, जब मैं मेंटर करता हूं सर्जन्स को, मैं बोलता हूं व्हेन यू डू सर्जरी, डोंट लेट द सर्जरी डू यू. सर्जरी चढ़ के बैठ गई अगर आपके ऊपर, तो आप गए. वो बहुत जरूरी है. तो सर्जरी करना किसी भी काम जैसे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है. आप उस लेवल पे आ जाओ कि सर्जरी हो रही है पर आप नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रही है सर्जरी. जब आप इसको सेपरेट कर लोगे तो आप दृष्टा भी हो जाओगे. आप अपनी सर्जरी के स्टेप्स को इंप्रूव कर रहे होगे, क्योंकि एक स्पेक्टेटर आप ही के हाथों को देख रहा है, आउटकम्स को देख रहा है. तो आपको मैं करता हूं से मैं दृष्टा हूं बन जाओ. और सर्जरी कोई हाथ कर रहे हैं, वो हाथ एक शरीर को बिलोंग करते हैं. उस शरीर को किसी ने डॉक्टर कमल कपूर का नाम दे दिया है. जो देख रहा है वो कोई और ही बीइंग है, वो कमल कपूर नहीं है. और वो डेटा एनालाइज कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है एक्सेल शीट पे कि क्या किया जा सकता है. भाई ऐसा कर, ऐसे करने से ठीक होगा. तो आप देखेंगे That is a subconscious mind. Absolutely. There is a thing called the center chatter. हमारे सबका दिमाग बोलता है. जब आप मुझे सुन रहे हो, आप वो नहीं सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, आप वो सुन रहे हो जो आपका दिमाग कह रहा है कि शायद ये मैं कहना चाह रहा हूं. तो आप वो सुनते हो जो आपका दिमाग बोलता है. आप मुझे नहीं सुनते हो, सुन सकते ही नहीं, क्योंकि सुन के पहले प्रोसेसिंग आ जाती है. जब आप मुझे सुन रहे हो और अब उसका अगला सवाल आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? मैं बोल रहा हूं, वो प्रोसेस हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, आपका नेक्स्ट सवाल बन रहा है इंटरव्यू का. राइट सर. तो वो जो सुन रहा है वो कौन है? वो कौन सुन रहा है? सर, आई एम जस्ट गेटिंग गूज़बम्प्स. वो कोई सुन रहा है. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपकी रूह काम जाएगी. अगर आपने उस चीज को सुनना चाहते हो, वो व्यक्ति नहीं है, वो जो चीज आपको सुनाती है, जिसको आपका दिमाग सुनता है, मैं आपको सुनवा सकता हूं. आपको एक सेकंड में पकड़ लेगा वो कौन है जो तुमसे बात करता है. मैं एक
10 सेकंड के लिए चुप होऊंगा और आपको एक आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज है जो आपसे बात करती है। मैं अब 10 सेकंड के लिए मौन हो जाऊंगा, अब कुछ नहीं, साइलेंस, टी, कुछ नहीं, अभी कुछ बोलना नहीं है आपने। मैं 10 सेकंड के लिए चुप होऊंगा और आपको एक आवाज आपसे बात करती हुई सुनाई देगी। वो आवाज को सुनना सीखो। अब मैं चुप हो रहा हूं। और अब मैं आपसे पूछूं, आवाज सुनी है? बोलोगे नहीं, पर आवाज पता कौन सी थी जो आपसे कह रही थी? कौन सी आवाज? अरे आवाज ये कौन सी आवाज है भाई? सर कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं? ये जो बोल रही थी, ये आवाज है। इसको सुनना सीखो। आपने सुना? बोल रही थी ना आवाज। राइट राइट सर, जब आप चुप 100% थे, राइट। मैं चुप था, आपके दिमाग में, आपके कैमरामैन के दिमाग में थी कौन सी आवाज? ये कौन सी आवाज? हाँ आवाज है यार, ये जो बोल रही थी ना, हाँ, ये कुछ और चीज बात करती है। ये कान नहीं बात करते, ये ब्रेन बात करता है आपसे। जिस दिन आप इस आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, आपको बहुत सारा क्लटर खत्म हो जाएगा लाइफ में। सर साइंस कैन प्रूव दिस थिंग। Absolutely. As science has proven, you listen to what your mind tells you. You don't listen to the world. राइट राइट। You don't listen to the words. Right now, even as I'm speaking, you're listening to me, your brain is interpreting something and then re-narrating it back to you. That's what you're listening. जब आप मुंह पे खाना डालते हो, वो खाने का स्वाद नहीं होता, वो खट्टा मीठा नमकीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो ब्रेन में आता है। ब्रेन बोलता आहा मजा है। खट्टा। वो खट्टा कौन बोला? जबान बोली? कौन बोला? वो आवाज बोली। आवाज बोली। तो जब आप उस आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, जिंदगी में बहुत शांति आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी आवाजें जो बेकार है ना, वो सुननी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो एक ऐसी नॉइज है, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप उसको जब चाहो बंद कर सकते हो, राइट। जब चाहे सुन सकते हो। मगर जब आपको मालूम ही नहीं वो आवाज है, आपकी कार में पंचर है, मालूम, किसी पड़ोस वाले ने टैप करके नहीं बताया कि सत्यम आपकी कार पंचर है, कुछ कर सकते हो उसके बारे में? नहीं। अब आप गाड़ी चला रहे हो, मैंने टैप किया, सत्यम गाड़ी पंचर है, आपने शीशे से देख लिया, अब आपको मालूम है, आप गाड़ी चला भी सकते हो ऐसे, और पंचर को ठीक भी करा सकते हो। अब आप अवेयर हो। अब आप ज्यादा पावरफुल हो कि पहले थे जब आपको मालूम ही नहीं था। तो ये एहसास आपको ज्यादा पावरफुल बनाता है। आपके पास चॉइस होती है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। लोगों का नहीं, उसने क्या कहा और मेरे दिमाग ने क्या कहा, इसमें भी मेरे पास चॉइस है कि यार नहीं, सत्यम ने ऐसा नहीं बोला, यार मैं ही सोच रहा हूं, तो मेरे पास चॉइस आ गई ना। उस समय गुस्सा नहीं करूंगा मैं। 99% हम सुनते हैं रिएक्ट करने के लिए। हम हर व्यक्ति को सुनते हैं उसको वापस जवाब देने के लिए। सुनने के लिए कोई नहीं सुनता। आप देखो, सुनने के लिए कोई नहीं सुनता, एक जवाब बनाने के लिए सुनते हैं। तो फिल्टर तो पहले लगा देते हैं आप, किसने ये बोला, इसका मैं जवाब क्या दूंगा, अगला सवाल क्या पूछूंगा इससे। तो फिल्टर चल रहा है पहले से। सर एक चीज मेरे ना दिमाग में ये आई कि अब इफ आई एम कनेक्टिंग इट, सर देयर इज अ रिलीजन में सर किसी चीज को सोल कहते हैं, साइंस में उसी लाइक सोल कहते हैं कि इट कैनॉट डाई, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सर साइंस में देयर इज एनर्जी, जैसे आपने स्ट्रिंग हाइपोथेसिस सुनी है फिजिक्स में? स्ट्रिंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स। आई थिंक ये बहुत डिटेल चले जाएगी अब। मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा हूँ आज 1 साल से। सर आई एम लॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटैंगलमेंट का एक कंसेप्ट है, राइट, कि दो चार्ज पार्टिकल्स को, लेट्स से फोटॉन्स को या क्वार्क्स को, आपने एंटैंगल कर दिया एक बार, यार वो एंटैंगल थे और उनको फिर सेपरेट कर दिया, और आपने उनको सेपरेट कर दिया, एक यहां पे एक मार्स पे है, बट दे विल कम्युनिकेट टू ईच अदर। आप इस फोटोन या इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी पार्टिकल को यहां पे कुछ करो, उसी क्षण में मार्स पे होता वो। ये क्या चीज इन दोनों को कनेक्ट कर रही है? तो अब आजकल लोग इसको स्पेस टाइम एनर्जी बोल रहे हैं। स्पेस टाइम एनर्जी इज अ कंसेप्ट कि सारे ब्रह्मांड, सारी पृथ्वियां, सारे ग्रह एक स्पेस टाइम में फ्लोट कर रहे हैं। राइट है। स्पेस टाइम एक एनर्जी है।
अब तो वो प्रूव कर रहे हैं ग्रेविटी इज नथिंग, इट्स स्पेस टाइम which pulls the objects as it's going around a round object. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है, इसमें नहीं जाएंगे. तो क्वांटम एंटेंगलमेंट जो होती है उसको वो डीप जा जाके देखा कि ये है क्या. तो उन्होंने बोला एक एटम है, मॉलिक्यूल है, एटम है, फोटोन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन्स हैं, उसको और तोड़ो, क्वार्क्स हैं और तोड़ो, बिजॉन्स हैं और तोड़ो. आखिर में पार्टिकल में सिर्फ एक एनर्जी थी और उस एनर्जी को उन्होंने ये नाम दिया कि ये स्ट्रिंग की तरह है. जैसे आप गिटार को एक स्ट्रिंग को इधर बजाओ तो अलग आवाज आती है, उसकी टाइटनेस कम करके इधर बजाओ तो अलग आवाज आती है. सिमिलरली ये एनर्जी कैसे वाइब्रेट करती है डिसाइड होता है कि मैटर क्या बनेगा. वही लोहा बन जाता है, वही लकड़ी बन जाता है. एट द बॉटम स्ट्रिंग थ्योरी कहती है एवरीथिंग एट द बॉटम इज एनर्जी. Sir, even I saw that experiment जिसमें they were observing the photons. Oh, Young's experiment. Yeah, so उसमें था कि if you are observing ना, they change their path. It is not change their path. Again, this is very complex. They said energy has got a dual nature. It's a wave and a particle. Particle. So the measure, this actually talks about the consciousness of the energy level. Energy level. The particle एक श्रोडिंगर्स हाइपोथेसिस है इसके ऊपर. अगेन ये सत्यम तुम इसको ऐसे गहरे कुएं में ले जाओगे, मैं 3 दिन तक बात कर सकता हूँ इसके ऊपर. सर मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि आजकल ना लाइक आई एम रीडिंग अबाउट द कॉस्मोस, स्टार्स. ये जो यंग एक्सपेरिमेंट थे ये अभी थोड़ी हुआ है, 150 साल पहले हुए हैं. 150 साल पहले हुआ था. बट अब उनको ये समझ में आना शुरू हो गया है कि कुछ और चीज है. क्वांटम फिजिक्स का बेस ये कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी गिवन मोमेंट पे एक किसी अलग फॉर्म में सर्वाइव कर सकती है. लेट्स से क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं हम. कंप्यूटर बिट्स में काम करता है, 0 1 0 1 0 1 0 1. तो क्या ऑल्टरनेटिव है? दो मॉड्यूल्स है. इसमें आप मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बना, 0 0 0 1 1 1 कुछ भी बना सकता हूं. एक चार्ज पार्टिकल को डायपोल होता है उसका, मींस कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, उसके आसपास एनर्जी कैसे वैसे रहता है. क्वांटम कंप्यूटिंग कहती है कि सिंपल कंप्यूटिंग में, बिट कंप्यूटिंग में किसी भी लैंग्वेज के दो मॉडल हैं, 0 1 0 1 0 1. क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई भी एक एक्साइटेड पार्टिकल मिलियंस ऑफ स्टेट में रह सकता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, और वो हर एक कोड है. अभी मैं आपका दिमाग फाड़ने वाला हूं इसमें. तो उधर आपके पास कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 1 0 0 ये कॉम्बिनेशन थे, राइट. और कितने सारे डिजिट लगाने पड़े थे. यहां पे एक पार्टिकल किसी गिवन मोमेंट पे मिलियंस ऑफ पोजीशंस में हो सकता है, और हर एक पोजीशन एक कोड है. अब इसको लिखो कैसे? उसके आसपास एनर्जी चेंज करो, उसको ऐसे घुमाना ऐसे करो, ऐसे घुमाना ऐसे करो. तो इसका क्लासिकल एग्जांपल होता है, आप 10 लोग एक पार्टी में डांस कर रहे हो, राइट, और सारे छलांग मार रहे हो. तो सारों की एक स्टेट है. मैं डीजे आ गया, मैंने म्यूजिक चेंज कर दिया. किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, सबकी अलग अलग स्टेट हो गई. अब वो हर अलग अलग स्टेट का पार्टिकल अगर एक कोड है, तो मेरा म्यूजिक डिसाइड कर सकता है मैं क्या लिखना चाहता हूँ. ओह डैम. क्वांटम कंप्यूटिंग में आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है, इतना डेटा आ सकता है. They are saying that the quantum computing can probably discover soul. People on other planets. Because उसकी computing का कोई हद ही नहीं है. अंत का उसका. So sir, that means कि if we are क्यूबिट बोलते हैं. क्यूबिट बोलते हैं. एक और एक क्यूबिट मल्टीप्लाई हो गए. लेट्स से एक क्यूबिट 10 बिलियन कोड्स कर सकता है. अब 10 into 10 मिलियन, 1000 मिलियन, सिर्फ दो. वहां पे 0 और 1 करके सिर्फ एक कोड बना, 2 कोड बनाते थे. यहाँ सिर्फ 2 से, और आप इसको तीसरा ले आओ, into. So the more number of excited particles you can have and change their state according to the energy you create around them, it's a different language. So sir, if we are working on this artificial intelligence
So they are saying that it will gain some consciousness. So it is because of So quantum. this is again something very, very, very interesting. Consciousness again is energy. It will be a learning model. It will learn, decide. It is an auto learning model. It's a language learning model. Right. Auto learns. It's like a छोटा बच्चा गलती करी सीखे गलती करी सीखा गलती. And I think even the inventors of artificial intelligence, they say that this could signal the end of mankind, because for the first time on planet Earth, इंसान से कुछ ज्यादा Species तेज है. इंटेलिजेंट चीज आ जाएगी. तो ये पॉसिबिलिटी लोग थ्योरी में But बोलते sir, what I believe is they'll live in the world which we don't recognize. हैं. That now we are talking about the fourth or the eighth dimension of existence. वो एक अलग ही गेम है. फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन की बात कर रहे हैं साइंटिस्ट की, वो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. जब हम और तुम इस कमरे में बैठे हैं, पता नहीं और कितने लोग बैठे हैं हमारे साथ इस वक्त, वो डिफरेंट डायमेंशन में, उनको हम नहीं दिखते, हम उनको नहीं हम दिखते. उनको नहीं देखते. Right. तो वो डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है, वो एक और अलग गेम है. वो अलग गेम है. ओहो सर, ये बहुत डीप हो जाएगा, है ना? ये काफी डीप हो जाएगा. एक चींटी को धागे में चलाते हो तो उसको सड़क दिखती है. एक मकोड़े को धागे में चलाते हो तो उसको गोल सिलेंड्रिकल चीज दिखती है. आपको धागा दिखता है. धागा दिखता है. चींटी के लिए वो टू डायमेंशनल है. तो चींटी टू डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है. आप उसको थ्री डायमेंशन में देखते हो. कोई और अगर फोर्थ डायमेंशन में हमको देख रहा होगा तो हम क्या लगते हैं उसको हमको पता ही नहीं. राइट राइट. या वो हमको देख भी पाता है, नहीं देख पाता. ये डायमेंशनल एग्जिस्टेंस ऑफ परसेप्शन है. So sir, as far as artificial intelligence is concerned, sir, what do you think how it will contribute in ophthalmology and 5 साल में what will be the future? देखो, सबसे बड़ी बात है एआई बहुत सारा फायदा तो करेगी हमारे सबका. हमारे को नॉलेज अभी भी देखो, बहुत सारे एआई मॉडल्स आ गए हैं. जेमिनी आ गया है, कोपायलट आ गया. बहुत समय जो पहले आप गूगल से सर्च मांगते थे तो आपको आर्टिकल्स आते थे, अब वो समरी दे देता है आपको. समरी दे देता है. राइट. ये सब चीजों में बेनिफिट करेगा. हमारी ग्रोथ फास्ट होगी, हमारी नॉलेज एसिमिलेशन फास्ट होगी. फिर वो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स और ऑटो एसिमिलेशन के साथ ये कोलेट कर लेंगे सारा डेटा. बट एट सम पॉइंट ये हमारी थिंकिंग को डड करेगा. व्हेन इज द लास्ट टाइम आपने कोई फोन नंबर याद किया था? राइट सर. नई जगह में जाते हो, गूगल ऑन कर लेते हो, अगली बार जाते हो रास्ता नहीं याद होता क्योंकि आप मैप देख के चल रहे थे. मैप देख के चल रहे थे. यही होने वाला. यही होने वाला है. So sir, we will get paralyzed. So sir, what measures we can take as beings? कहते हैं लोग कि मेमोरी लॉस होगा आने वाली जनरेशन्स को, उनकी जल्दी जान मेमोरी जाएगी. बेस्ट है आप ऐसे ऐसे कार्य करते रहें जिसमें आपको माइंड को यूज करते रहना पड़ेगा. गानों के लिरिक्स याद करने, रास्ते याद करने, पजल्स करनी, बुक्स पढ़नी. रीडिंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. रीडिंग बुक्स, जिक्सॉ पजल्स करनी, सुडोको करनी, डिक्शनरी पढ़नी, बहुत सारी चीजें जो कि अपने माइंड को एक्सरसाइज करते. सर क्योंकि मेरे को ना कई बार लगता है एज फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, सर देर आने वाला जो फ्यूचर में बिजनेसेस होंगे ना, देयर विल बी मोर डेटा सेंटर्स. एब्सोल्युटली. डेटा इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर. इंफॉर्मेशन इज पावर. डाटा की तरफ बढ़ रही है चीज. So Information. there will be a lot of big data companies who will hold all the power and run that computers. Absolutely, you're right. So sir, what are the 3 subjects person my age, which is 25, should work upon? First of all, I think you should work on training your mind to think. We all think, हमको लगता है कि बोलना क्या सीखना है, बोलना तो आता है ना? बट स्पीच ऑल्सो इज अ साइंस, इट्स एन आर्ट. ऐसा क्यों है कि कुछ स्पीकर बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ स्पीकर नहीं होते? इट कम्स फ्रॉम द साइंस कि जो स्पीकर अच्छा होता है वो थिंकर होता है. तो इसी तरीके, जिस तरीके लोग कहते हैं ना आजकल पब्लिक स्पीकिंग ट्रेन करूंगा, Right. बोलना तो सबको आता है, तो क्या सिखा रहा है वो आपको? सिमिलरली थिंकिंग भी ट्रेनेबल है. यू कैन ट्रेन योर माइंड टू थिंक in a different way, in a bigger way or in a manner. तो ये जो कोचेज होते हैं, ये जो आपके सीईओज होते हैं, वो क्या करते हैं? टीम्स को ट्रेन सिखाते हैं ना कि ऐसे सोचो, ऐसे करो, बिजनेस की तरफ ओरिएंट करते हैं. क्या होते हैं? थिंकिंग सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं.
आपका विंडोज और एंड्रॉइड हर 4-5 हफ्ते में, महीने में अपडेट हो जाता है. अपडेट हो जाता है. When is the last time you updated your thinking software? Tell me. When is the last time you did it? Sir, that I don't know, but I usually read 10 to 15 minutes a day. That's my. No. What reading, of course, is a part of the exercise. So weekly, what I have अपडेट added in- माइंड को कैसे अपडेट करते हो? सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो? नया एप्पल का अपडेट आता है, नहीं गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं. लेते हो ना? माइंड को कैसे करते हो? नहीं करता. आपको ऐसी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डालेंगे. सॉफ्टवेयर डालेंगे. आप समझे? शायद आज की मीटिंग के बाद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तुम्हारे से मिलने के बाद. सर मेरा हो गया है. आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हुई होगी. ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है. और ह्यूमन माइंड हमेशा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं जानता हूं, वो बहुत है और जरूरत नहीं है. अपडेट सबको आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है. बिल गेट्स को भी आवश्यकता है, एलोन मस्क को भी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है. सर आई हैव रेड समवेयर लाइक इट्स आई रेड अ बुक कॉल्ड चाणक्य इन यू. So sir, there was a phrase in that कि every week na a person who wants to develop his mind, his thoughts, he should take 30 to 40 minutes where he should put down his phone and just think how I can think it from different angles. Take a problem and think it from different angles. I would say a different exercise is that just sit and be the spectator to the monkey called mind. बैठो और इस बंदर को देखो. और वो बंदर आप है. Right. कभी स्टाली, कभी उसकी ध्यान आ रही, अभी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, अरे अब पापा वो कर रहे थे. थोड़ी देर बाद जब बंदर को पता लगता है ना आप देख रहे हो, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाता है. फिर वो शांत हो जाता है. पर जब तक आप उस बंदर को देखोगे नहीं, दृष्टा बनकर अपने विचारों के दृष्टा बन जाओ. जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको देखना शुरू कर दो. थोड़ी देर में वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, शांत हो जाएगा. कुछ करने की जरूरत नहीं. उसके बाद फिर साध लिया आपने उसको, फिर साध लिया. सो ऑलवेज टेल माई सेल्फ व्हेन आई एम खाली, लेट अस सी दिस मंकी कॉल्ड माइंड. 4 मिनट में इतने आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो कि मंकी आपको पागल कर दे, क्योंकि बैठ सकता ही नहीं. वो नहीं बैठ सकता. वो आपको उठाएगा, कोई काम याद कराएगा, कुछ किसी की फोन कॉल को याद कराएगा. वो आपको रेजिस्ट करना है. जब मंकी का पट्टा, जो मंकी ने आपको डाल रखा है, आपने खोल दिया ना, तो मंकी के पट्टा आपने लगा दिया. फिर मंकी कुछ नहीं कर सकता. So you know sir, this was my first ever conversation जिसमें सर मैं ना ये नहीं सोच रहा था कि आई हैव टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉडकास्ट. पहले मैंने सोचा, बट अंदर को देखना शुरू कर दो, जिंदगी सुखी हो जाएगी. it was the first time I had this conversation. So above, so below. Principle of vibration, then principle of frequency, everything go up and down. Then principle of polarity, which has north, it has south. Then there was a principle of gender. Each and every living thing on this universe has a gender. It has a male and female component. I'll tell you see, साइंस कभी कभी क्या होता है, जब किसी चीज को ग्रैपल नहीं कर पा रही होती है ना, तो उसको थ्योरीज में डाल देती है. अभी तक साइंस को ग्रेविटी नहीं समझ में आती थी कि जब तुम छलांग मारता सत्यम तो वापस क्यों आता है नीचे. तो ग्रेविटी नाम बोल दिया. अभी भी किसी को नहीं पता. ग्रेविटी है सेंटर ऑफ अर्थ के कोर तक. मैं तुमको अर्थ के सेंटर कोर में डालूं तो कहां जाएगा फिर तू? कोई जवाब नहीं किसी के पास. तो अगर भूतल का कोर मुझे अपनी तरफ खींचता है, तो अगर मैं कोर पे हूं तो मेरा क्या होगा? वो धक्का मार के वापस भेजेगा मेरे को ऊपर. तो फेल है. तो ह्यूमन माइंड जितना समझ सकता है उतना ही समझा सकता है. मुझे तुम गुलाब की सुगंध समझा सकते हो? नहीं. क्या बोलोगे? सर रोज वाली स्मेल है. रोज कैसा होता है?
सर लाल गुलाब जैसा, हम्म समझे? सर आई वॉज रीडिंग अ बुक, उसमें ना किसी ने लिखा था, कहते ये पेड़ है, ये हमने कहा ये पेड़ है, असल में वो क्या है, यू कैनॉट इवन डिस्क्राइब इसको इट। बोलते हैं नॉन लिनियरिटी ऑफ ट्रूथ। आप यहां से अपने घर से कमोड उतारो फ्लैश, अफ्रीका के जंगल में जाओ, किसी ट्राइब को बोल दो ये भगवान है, पूजा कर रहे होंगे लोग इसकी। सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज ट्रूथ? योर ट्रूथ, माई ट्रूथ, व्हाट इज ट्रू? देयर इज नो ट्रूथ इन द वर्ल्ड, देयर इज नो ट्रूथ इन द वर्ल्ड, देयर आर ओनली फैक्ट्स। फैक्ट कुड बी एक ऑब्जेक्ट 15 किलो का, कितने सेंटीमीटर का, सफेद रंग का, सत्यम जी ने इसको भगवान की उपाधि दी, ये फैक्ट है। ये फैक्ट। बाकी मेरी सोच, तुम्हारी सोच, तुम्हारे लिए फ्लैश है, किसी के लिए भगवान है। राइट। बट अब अगली डिफिनेशन आती है कि सत्यम ने इसको बोला व्हाइट है, पर मेरी डिक्शनरी में व्हाइट है ही नहीं, वाइट है, तो क्या है वो मेरे वो लिए? क्या है? हाँ। वो क्या है? तो यथार्थ कुछ भी नहीं है। जिस दिन हम ये पकड़ लोगे कि ट्रूथ कुछ भी नहीं है, सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही और गलत भी रिलेटिव है, वो भी गलत है। सऊदी में चोरी कर दो हाथ कट जाएगा, सही है। सही है। 4 बीवी कर लो शादी, सही है। हाँ। यहां गलत है। सही क्या है, गलत क्या है? हाँ। सही गलत सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी कल्चर। मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एक सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं। जो मेजॉरिटी में आ जाता है वो अपने कानून बना देता है और वो सही हो जाते हैं। जो बेचारा जिसके लिए वो सही नहीं है उसके लिए गलत होते हैं। गलत होते हैं। तो सही और गलत है क्या? क्या है? पुराने जमाने में फ्रांस में वो एक ग्लव मारता था एक बंदा किसी को, और वो बंदा होता था, ऑफिशियल होता था कि अब ये फाइट टू डेथ है, तुम्हारी मेरी लड़ाई होगी, मुक्काबाजी नहीं, मैं तो तुम्हारे को ग्लव फेंकूंगा, तुम्हारी छाती पे ग्लव मारूंगा। उसके बाद पूरा मोहल्ला आके देखेगा हम दोनों एक दूसरे की गर्दन काटी, जिसने जीत गया। सही था गलत था? पर सही था। लोग इज्जत के लिए अपने बहन बेटियों को मार देते हैं। सही है गलत है? तो ट्रूथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हम एक सोसाइटल नॉर्म्स पे चलते हैं, सोसाइटल लीनियरिटी ऑफ ट्रूथ है, हम बार बार बोल के उसको जी कर सच कर लेते हैं। जो फॉलो नहीं कर रहा उसके लिए गलत है। गलत है। रजनीश की एक सेइंग है कि यू कैन नेवर मीट द सेम मैन अगेन। द सत्यम आई एम सिटिंग विद नाउ, आई सेट 1 hour ago, इज नॉट द सेम पर्सन। इज नॉट द सेम पर्सन। वो कहता है यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक नदी में 2 बार पांव डाल ही नहीं सकते। कभी आपने डाला, उसके बाद जिस पानी को छुओ तो पानी गया, अब तो नया पानी है। सिमिलरली जो सत्यम सामने बैठा है और जो मैं जिससे मैं बैठा था वो बदल गया। एंड आई एम श्योर कुछ बात करके मैं तुमसे कुछ सीखा हूं तो तुम बदल गए हो। सर दीज थिंग्स ना आई वांटेड टू टॉक विद समबडी बट आई नेवर गॉट द चांस। मतलब आई डोंट नो कि वो फ्लो में मेरी बातें निकली हैं, बट अगर मैं इफ आई डिड दिस काइंड ऑफ टॉक समवेयर एल्स ना, लोग कहेंगे कि यार ये क्या पूछ रहा है। ऐसा होता है कभी कभी आप ऐसे बात करते हो। देखो हर एक व्यक्ति हर एक चीज के लिए रेडी भी नहीं होता है। तुम्हारा पेट भराव में खाना परोस दूं, तुम खाना नहीं खाओगे, तुमको स्वाद नहीं लगेगा। तो योर माइंड हैज टू बी रेडी फॉर इट। रजनीश की एक बहुत पावरफुल सेइंग है। मेरे को लोग बोलते हैं सर आप बहुत अच्छे मेंटर हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी सिखाते हो। सो ऑलवेज टेल देम व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। आप प्रार्थी बन जाओ, अंजुलि खोल लो, पानी तो आएगा यार। और जितने अंजुलि खोलोगे उतना आएगा। सो व्हेन यू आर रेडी द टीचर अपीयर्स। द कॉस्मोस विल क्रिएट अ सिचुएशन कि अब ये इवॉल्व होना है, अब इसने ये सीखना हो जाएगा, पर आपको रेडी होना पड़ेगा उसके लिए। प्रार्थी बनो। अर्जुन ने जब गांडीव रख दिया था नीचे और उसने बोला था कि पार्थ मुझे रास्ता दिखाओ, तो ही बोले थे भगवान कृष्ण। उससे पहले तो नहीं बोल रहे थे ना।
और एक पल में वो कहते हैं उन्होंने मुंह खोला था, ब्रह्मांड दिखा दिया था पूरा, अर्जुन की दुनिया बदल गई। तो अर्जुन एक क्षण में बदल गया था ना, वो था नहीं, वो बदल गया था। तो हमारे सब में है, हम सब हर क्षण बदल रहे हैं। तुम्हारे बॉडी का सेल कुछ मर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ सेम है ही नहीं। द ओनली थिंग अबाउट लाइफ इज इट्स अनप्रेडिक्टेबल, नोबडी कैन प्रेडिक्ट क्या हो रहा है। एक रोहित शेट्टी बड़ा अच्छा कोट बोलता है, व्हेन यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम दैट यू हैव प्लान्स इन योर लाइफ। भगवान हंसेगा, बोलेगा अच्छा तेरे प्लान है, तेरे को पता ही नहीं मैं तेरा क्या करने वाला हूं। तो ये कहानी है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम। मच।